ہوں سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے، آواز بلند پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا آپ کو سننے ہیں کہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے، اور جمعرات کا وقت تو لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے خاص جمعہ اور جمعرات کے دن، تو روز تو درود پڑھنے پر فرشتے درود کو لے کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آج اور کل کا دن جو ہوتا ہے، اس جمعرات اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو کوئی فرشتہ نہیں لیتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، اور وہ کانوں سے سماعت فرمانے کے بعد کل قیامت کے دن جب تمہارے نام اعمال پڑھے جائیں گے، اگر کوئی تمہارے نام اعمال میں جو کمی ہوگی، وہی درود پاک کی جو چٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے تو تمہارے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ درود پاک کو کہنا سمجھیے، درود پاک سے لوگ ولایت پا جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، بابا سے بلند پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق دو تین اشعار سماعت فرما لیں۔ وہ حسین ہے ہمارا، وہ حسین ہے ہمارا، وہ حسین ہے ہمارا، وہ حسین ہے ہمارا، جو کٹا کے اپنی گردن، جو کٹا کے اپنی گردن، جو کٹا کے اپنی گردن، جو ہے دین کا سوارا، وہ حسین ہے ہمارا، وہ حسین ہے ہمارا۔ جبرائیل جن کے خاطر جنت سے جوڑا لائے، جبرائیل جن کے خاطر جنت سے جوڑا لائے، کہ نہیں تم کرونا، کہ نہیں تم کرونا، اللہ کا گوارا، وہ حسین ہے ہمارا، وہ حسین ہے ہمارا۔ اب کربلا کا وہ منظر جب 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، اس پہ شاعر کہتا ہے فرات کا تھا پانی، یہی کہتے تھے یزیدی، کہ فرات کا تھا پانی، یہی کہتے تھے یزیدی، کہ نہیں تم کرونا، کہ نہیں تم کرونا، کوثر کا بہتا دھارا، کہ نہیں تم کرونا، کوثر کا بہتا دھارا۔ آخری سے سماعت فرمائیں۔ یہ زمین کربلا کی، یہ زمین کربلا کی، یہی کہتے تھے یزیدی، یہ زمین کربلا کی، یہی کہتے تھے یزیدی، یہ زمین کربلا کی، یہی کہتے تھے یزیدی، میں تو ہار کر، میں تو جیت کر بہارا،
ملک یعقوب نے کہا تھا حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ تو کل میں نے امام مسلم کی شہادت کا بیان کیا تھا اور فوراً کیا تھا، تو اب آئیے امام مسلم کو جب ابن زیاد نے قتل کرنے، سر تن سے جدا کرنے کا حکم دے دیا، سر تن سے جدا ہو گیا اور گورنر ہاؤس سے اوپر سے پھینک دیا گیا امام مسلم کو، ہڈیاں چکنی چور ہو گئی اور ہانی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہانی کو بھی قتل کرنے کے بعد امام مسلم بن عقیل کو اور ہانی کو، دونوں جن کو کھچر پر باندھ کر پورے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور کوفہ والوں سے کہا گیا کہ اگر کوئی امام حسین کی مدد کرنا چاہے گا اس کا حال یہی ہوگا، اگر کوئی امام حسین سے تعلق رکھے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ تو کوفہ والوں اور قبل ابن زیاد کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ امام مسلم کے دو صاحبزادے بھی آئے تھے، تو اس نے یہ بھی اعلان کروانا شروع کر دیا کہ جن لوگوں کے پاس امام مسلم کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ لا کے گورنر حافظ میں جمع کرے، ورنہ اس کا حال ہانی کے جیسا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم نامہ جاری ہو گیا۔ یہاں قاضی سرح کے گھر پر دونوں صاحبزادے تھے، قاضی سرح تو وہ کہتے ہیں نا حکومت کسی کی بھی ہو وہ سروں پر حکومت تو کر سکتا ہے، پر دل کی حکومت اہل بیت کی ہمیشہ سے ہے۔ تو آپ سمجھے ایک انگریز آیا تھا، انگریز مفکر آیا تھا، اس نے ہندوستان میں آنے کے بعد کہا کہ اگر ہندوستان پہ انگریز کی حکومت میں نے دیکھی پر دلوں میں قتل والی کی حکومت دیکھی، وہ کس کی کی حکومت، وہ کسی اور کی حکومت نہیں، خواجہ خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین کی حکومت مسلمانوں پر دیکھی۔ تو دنیا میں حکومتیں بہت آئی پر مسلمانوں پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے، دلوں پر کوئی حکومت کر رہا ہے تو اہل بیت کا گھرانہ کر رہا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ تو حکومتیں بہت آتی جاتی ہیں پر اہل بیت کی دل میں محبت تھی، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ قاضی سرح نے کیا کیا؟ دونوں صاحبزادوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے پاس رکھنے کے بعد رات کی تاریکی میں، ارے کوفہ والوں کو اس کو شرم کیا ہوتا، امام مسلم کی شہادت اسی دن ہوئی اور یہ کوفہ والے دروازہ بند کر لیے اور سو رہے ہیں، بے خبر سو رہے ہیں۔ قاضی سرح کہتے ہیں کہ دونوں صاحبزادے، مجھے آپ کے ابا حضور کی جو ہے خبر ملی، میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، مجھے بتایا کچھ گیا تھا کہ اعلان کرو کہ ام ہانی کے ساتھ صرف بات چیت چل رہی ہے، کچھ اور نہیں، میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ قاضی سرح اپنے ہاتھوں سے دونوں بیٹے کو سہلانے لگتے ہیں، دلاسا دینے لگتے ہیں کہ بیٹا، میرا بیٹا آنے والا ہے اور جو مدینہ کا قافلہ نکلنے والا ہے ان میں آپ کو راستہ دے کے دکھا دے گا، اس قافلے میں شامل کر دے گا، وہ اسی قافلے کے ساتھ آپ مدینہ تشریف لے کے چلے جائیے گا اور مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی اپنے نانا جان سید الانبیاء امام الانبیاء کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں میرا سلام کہہ دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ دونوں صاحبزادے، اب ان کا بیٹا آتا ہے، ان لے کے چلا جاتا ہے، پر
जब मदीने मुनव्वरा को जाने वाला था, वो निकल चुका था, तो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, रोशनी दिख रही थी, फला काफिला जा रहा है, मदीने के रास्ते पे जा रहा है। उनका बेटा काजी सुलह का बेटा वो कहता है इन दोनों साहबजादे से, एक साहबजादा 6 साल का है, दूसरा 8 साल का है, अब नन्ही सी उम्र है। कहते हैं कि यही रास्ता मदीने मुनव्वरा को जाता है, आप यही रास्ते से चले जाइए। अभी अभी काफिला देखो रमजान है, हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही है, इसी रास्ते से चले जाइए, फास्ट जाइए, दौड़ कर जाइए, काफिले में शामिल हो जाइए। अब नन्ही सी उम्र है, कितना दौड़ेंगे, रेतीली जमीन है, चल रहे हैं, कभी कांटे चूप रहे हैं, पर रात भर चलने के बाद भी दोनों साहबजादे रात भर चलने के बाद एक खाड़ी में मिलते हैं और वो सुबह की नमाज के लिए पानी तलाश करते हैं। पर इब्ने सियाद के जो भेजे हुए सिपाही थे वो देख लेते हैं और अहले बैत को नाम की जरूरत नहीं, उनकी खूबसूरती ही बता देती है ये अहले बैत का घराना है। तो सिपाही समझ जाते हैं कि ये इमाम मुस्लिम के बेटे हैं। उन्होंने फौरन दोनों बेटे को गिरफ्तार किया, इब्ने ज़ियाद के पास लेकर गए। इब्ने ज़ियाद ने दोनों को जेल में डालने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अब दोनों बेटे जो है जेल में है, तो जेल का जो दरोगा था वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। रात में उसके दोनों बेटों के इंतजाम में लग गया और दोनों के आराम करने के, खाने पीने की खिदमत करने में जुट गया और अपनी एक अंगूठी दी, कहा बेटा मेरा भाई फला जगह है और उधर से मदीना जाने का काफिला भी जाता है, आप मेरे भाई को यह अंगूठी दिखा देना, मेरे भाई को यह अंगूठी दिखा देना, वो समझ जाएगा और आपको मदीने मुनव्वरा की जो काफिला जाने वाला है उसी जगह आपको छोड़ देगा। तो दरोगा ने दोनों बेटे को रात में रिहा कर दिया। अब दोनों बेटे चलते जाते हैं, रात के छाले तो अभी आज की गुज़िश्ता रात जो गुजर गई उसके छाले तो पड़े थे, पर अब रात में चलना है। दोनों साहबजादे रो भी रहे हैं, मोहम्मद इब्राहिम रो भी रहे हैं और चल भी रहे हैं और अब पत्तों की खनखनाने की आवाज आ रही है, तो बैठ भी जा रहे हैं कहीं फिर इब्ने ज़ियाद के सिपह सलार फिर से गिरफ्तार न कर ले। अब चलते जाते हैं, तारीख ने वो भी लिखा कि रात भर चलने के बाद मोहम्मद और इब्राहिम कहीं और नहीं, उसी करबला में पहुंचे, उसी करबला में ही रहे। पूरी रात चलने के बाद अब जमीन बढ़ गई या क्या हुआ वो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, पर तारीख की किताबों में आया कि रात भर दोनों साहबजादे चलने के बाद भी उसी जगह लौटे, उसी एतराफ में लौटे, उसी बाजू में लौटे कि अभी तो इधर से गए थे, फिर अभी इधर आ गए। फिर दोनों साहबजादे ने फजर की अजान के सदाएं गूंजी, तो उन्होंने कहा कि फजर का वक्त हो गया है, चलो पानी की तलाश करते हैं। बताओ दोनों साहबजादे की उम्र कितनी है? 6 साल है, 8 साल है, पर नमाज मुक्तर करना बेहतर न समझ रहे हैं। दोनों ने पानी तलाश करना चाहा, पानी मिला, नहर मिला, नहर के पास वजू किए, 2 रकात नमाज पढ़ी और एक खो दिखा, उसी खो में जाकर छिप गए। अब एक कनीज आती है, पानी भरने, देखती है तो चांद सा टुकड़ा इस पानी में छवि आ रही है, कहाँ है? चारों तरफ नजर घुमाती है, नहीं मिलता, फिर दोबारा देखती है, तो एक खो हमें तो चांद से टुकड़े नजर आए, तो वो समझ जाती है ये जरूर मोहम्मद मुस्लिम इब्ने अकील के साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम नजर आ रहे हैं। दोनों साहब से पूछती है तुम कौन हो? पर कल का जो मामला गुजरा उनके साथ कि
साहबजादे ये सोच रहे जान जानी है तो जाने दो, पर सच बोलेंगे। तो दोनों साहबजादे ने कहा कि हाँ हम मुस्लिम इब्ने अकील के साहबजादे हैं, हम मदीना जा रहे थे। तो दोनों साहबजादों को वो कनीज अपनी जो उसकी मालिक थी उसके पास लेके गई, दोनों साहबजादे के बारे में बताई। उसकी मालिकिन जो थी वो कनीज़ाने फातिमा में से थी, फातिमा की गुलामों में से थी। उसने कहा कि अच्छा हुआ कनीज तू मेरे पास लेकर आई, जहाँ इसके बदले मैं तुझे रिहा करती हूँ, इसके बदले तुझे रिहा करती हूँ। अच्छा रिहा कर दिया, उस कनीज को रिहा कर दिया। यहाँ दोनों साहबजादों को जो है अच्छे से उस कनीज़ाने फातिमा ने अच्छे से उसको जो है नहलाए धुलाए कंघी किए और कहे अपना ही घर समझो, और अच्छे से खाना वाना खिलाए। रात की तारीकी हुई, फिर वही खातिरदारी हुई। उसका शौहर जब हारिस आया रात की तारीकी में, तो हारिस से पूछने लगी कितना देर कहाँ हुआ। कहा इब्ने मुस्लिम के दो साहबजादे गिरफ्तार किए गए थे, वो जेल से फरार हो चुके हैं, भाग गए हैं। और इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि अगर उन दोनों को कोई लाके देगा तो उसको मालदार कर दिया जाएगा। मैं उसके चलते मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो उसकी बीवी जो है अच्छे से खाना पीना खिलाई और गई। तो रात की तारीकी में दोनों साहबजादे लिपट कर रोने लगे। इब्ने हारिस जो था उसकी नींद खुल गई। खुलने के बाद कहने लगा कि किसकी रोने की, किस बच्चे की रोने की, सर अपने घर में से आ रही है, अपने घर में इतनी उम्र का कोई बच्चा नहीं है। इब्ने हारिस ने उसकी बीवी ने कहा कोई नहीं, तुम्हारे कान बज रहे, तुम सो जाओ, कहा नहीं चक्कर तो करेंगे। तो उसने रूम में गया और दोनों साहबजादों को देखा जो खींच के तमाचा मारा, अल्लाह अकबर। गुलाब पे अगर कोई पांव रखता है किस तरह वैसे गुलाब हो जाता, गुलाब जैसे चेहरे पर जो खींच के तमाचा मारा, लाल लाल गोरे गोरे जो गाल थे वो लाल हो गए। दोनों साहबजादे रोने लगे। और क्यों रो रहे थे आप समाप्त फरमाए। दोनों साहबजादे के ख्वाब में नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, हजरत अली हैं, फातिमा है, मुस्लिम इब्ने अकील है। मुस्लिम इब्ने अकील से नबी कौनैन फरमा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ऐ इब्ने मुस्लिम, ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, तुमने अपने दोनों साहबजादों को किसके भरोसे छोड़ के आया, उन कुर्सियों के भरोसे छोड़ के आया। तो इब्ने मुस्लिम ने जवाब दिया, मुस्लिम इब्ने अकील ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं किसी के भरोसे छोड़ के नहीं आया। अभी अभी वो लोग आते ही होंगे, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, थोड़ी देर में दोनों मेरे साहबजादे मेरे साथ होंगे। इसी ख्वाब को देखे दोनों साहबजादे रोने लगे। इधर हारिस जो है उन दोनों को बंद कर देता है कमरे में। उसकी बीवी कहती है एक पैसे के लिए, तू पैसे के लिए अहले बैत का सौदा कर रहा है, अहले बैत के सौदा कर रहा है। उसकी बीवी बहुत समझाती है, पर हारिस के दिमाग में सिर्फ दौलत का भूत सवार था। दौलत इसी के लिए कहते, किसी ने क्या खूब कहा था, ये जो दौलत है ना इससे भी कम नुकसान होता है, पर शराब और शबाब से ज्यादा नुकसान होता है। ये दौलत जो कुफा वालों के दिलों में आ गई थी, जो धोखा दे रहे थे सिर्फ दौलत की वजह से। तो इब्ने हारिस जो है सुबह नमूदार हुआ, नमूदार होने के बाद दोनों को पकड़कर नहरे फुरात की तरफ चलने लगा। उसकी बीवी भी उसके साथ बचाने की, जितना वो चाहे उतना बचाने की कोशिश की। उसने अपनी बीवी को इस तरह धक्का दिया कि जाके दीवार में उसकी बीवी का सर लड़ा और बेहोश हो गई। अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, उसने बेटे को भी धक्का दिया, उसका बेटा भी बेहोश हो गया। तो वो नहरे फुरात की तरफ चलने लगा। नहरे फुरात में जब पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता तैयार हो जाओ, तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है। उसकी बीवी वहां भी पहुंच गई, उसकी बीवी वहां भी पहुंच गई। उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकालने के बाद उसकी कनीज जिसको आजाद की थी उसको भी खबर मिली, वो भी आई, उसका बेटा भी आया। तीनों उसको छुड़ाने लगे, पर उसने एक बार ऐसा किया, पहले कनीज के सर से तन सर से जुदा किया, फिर अपनी बीवी का भी तन सर से जुदा
स्क्वाटर है सामने बैठे उसने एक तलवार चलाई, ऐसा वार किया, बड़े साहब, बड़े बेटे, बड़े भाई जान इब्राहिम, इसने ऐसा वार किया कि सर तन से जो जुदा हुआ, छोटा भाई चीख पड़ा, क्या हो गया? उनकी चीख निकली ही ना थी। ये जो हारिस था, ऐसा वार किया कि इनकी चीख अभी निकली भी ना थी, सर तन से जुदा कर दिया गया। आज भी नहर फुरात के सामने, नहर फुरात के पास ही में दोनों साहबजादों की कब्र है। दोनों साहब, नहर और पास ढल गया, पर दोनों साहबजादे तब नहर पड़ी थी। दोनों साहबजादों की कब्र आज भी है। ये अभी चीख भी निकली ना थी कि दोनों साहबजादों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अच्छे से उसको सजाता है, इब्ने ज़ियाद की पास जाता है। पास जाने के बाद कहने लगता है, इब्ने ज़ियाद मुझे माल और दौलत से नवाजो, आज आपके लिए ऐसा तोहफा लाया हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। जैसे ही दोनों साहबजादे का चेहरा देखता है कि कटा हुआ सर तन से जुदा सर है, इब्ने ज़ियाद उस पर भड़क पड़ता है, कहने लगता है, मैंने तो ये नहीं कहा था कि दोनों साहबजादों का सर तन से जुदा करके लेकर आओ। अब मैंने यजीद को एक खत लिखा कि दोनों साहबजादे मेरे गिरफ्त में हैं, जेल में बंद हैं, हयात हैं, अगर उसका हुक्मनामा कुछ और आया तो मैं क्या जवाब दूंगा यजीद को? लिहाजा उसको भी नहर फुरात में लेके जाके हारिस को भी, ये इब्ने ज़ियाद जो है हुक्म दे दिया कि ये हारिस को भी जाके कत्ल कर दिया जाए। देखो अहले बैत के पूरा चाहने वाले, उसका भी वही हाल हुआ। क्या हुआ? ना धोबी का कुत्ता, ना घर ना घाट का, यही हुआ। ना सनम महीना मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर मिला, ना दौलत मिली, बीवी भी गए, बच्चे भी गए, अहले बैत के बुग़्ज़ में फिर नारी जहन्नमा भी हो गए। ये अहले बैत के बुरा चाहने वालों का हर दौर में हाल हुआ है, ये हर दौर में हाल हुआ है। लिहाजा अब दोनों बच्चों को दफना दिया गया नहर फुरात के पास। अब इधर इमाम मुस्लिम ने जो खतूत लिख के भेजे थे हज़रत इमाम आली मकाम की बारगाह में, अब इधर से मदीना मक्का शरीफ से इमाम आली मकाम निकलने की तैयारी करते हैं। सहाबा रोकने की कोशिश करते हैं, कहते यार इमाम आली मकाम, हम लोग का दिल बहुत घबरा रहा है, शायद कुछ गलत तो हुआ है। इमाम आली मकाम कहने लगते हैं, नहीं, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बसारत दे चुके हैं। वो ख्वाब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं कूफा जाऊंगा। ख्वाब का तस्करा भी नहीं आया, तो किताबों में उसकी तफसीर भी नहीं है ख्वाब में क्या था। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने और इमाम हुसैन बेहतर जाने ख्वाब क्या था। पर इमाम हुसैन इतना कह के कूफा के लिए रवा हो गए, अपने का खानदान वालों के लिए और रवा हो गए कूफा के लिए। अब रास्ते में चलते गए, एक जगह क़याम हुआ इमाम हुसैन का। एक कूफी जो था इमाम हुसैन की बारगाह में आता है और आने के बाद अर्ज करता है, इमाम अली मकाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। सलाम अर्ज करता है, कहता है इमाम अली मकाम, कूफियों ने बड़ा धोखा दिया, कूफियों ने आपके नायब इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, और इमाम मुस्लिम को शहीद करने के बाद उनके दो फूल जैसे साहबजादे इब्राहिम और मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया। इमाम अली मकाम आंखों में आंसू आ गए, वो खेमे में जाते हैं और इमाम मुस्लिम की बेटी खेमे में पहली जो खेमे में कदम हुआ, इमाम मुस्लिम की बेटी देखिए अली मकाम रो रहे हैं और अली मकाम बेटी के सरों पर हाथ फैलाना शुरू किए, हाथ सहलाना शुरू किए, बेटी 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 इतना कहने, तो बेटी समझ जाती है, चचा जान से पूछती है, चचा जान आप मुझे इस तरह क्यों सहला रहे हैं कि यतीमों को सहलाया जाता है? क्या मेरे अब्बा हुजूर कूफा में शहीद हो गए? इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटी आज से मैं चचा भी तुम्हारा हूँ, अब्बा भी तुम्हारा। इतना सुनने के बाद बेटी बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है कहती है, मेरे दोनों भाई मोहम्मद इब्राहिम क्या हाल है? तो इमाम अली मकाम
लेके आना पड़ेगा, कल से स्टैंड लेके आना इमाम मुस्लिम इमाम अली मकाम ने लोगों को समझाया, ताकीद की, अभी और सबसे काम लेना है, मोहम्मद अरबी के दीन इस्लाम को बचाना है। या जब सूरज नमूदार हुआ फिर काफिला चल पड़ा। इधर जो है खुद जो है इब्ने ज़ियाद के हुक्मनामे से 500 तकरीबन 500 लश्कर लेकर इमाम अली मकाम को गिरफ्तार करने आया था। आने के बाद उसके दिल में इमाम अली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत थी, हुर के। तो हुर ने इमाम अली मकाम को तलाश किया। तलाश करने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में आकर सलाम और किया। कहने लगा, इब्ने ज़ियाद ने आपके ऊपर हुक्मनामा जारी किया है और